Binance। स्वागत है आपका। और क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज मौजूद हैं इंजेक्टिव के जॉन मेडल। जॉन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आप काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को यूएस में पुश करते रहे हैं। लेजिस्लेशन किस तरह से रीशेप करेगी यहाँ पर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को आपके लिहाज से? First of all, thank you very much for having me today and sharing some of my views. For us in the industry, the Clarity Act really is a game changer, a fundamental reshaping of the environment for decentralized protocols such as ourselves at Injective. It's really an opportunity to create a comprehensive framework for the digital assets markets that allows for strengthening of consumer confidence, preventing fraud, and really providing regulators the tools necessary to be able to supervise this new emerging asset class. So it will really reshape the way financial services will be delivered and how consumers can use these new markets and participate in this with these new products. John, what's your sense on the decentralized order book protocols, which perhaps should not be regulated on the same umbrella as traditional broker-dealers? What is your justification on that point? Yeah, for us, the understanding to help your viewers would be that all these protocols are not custodians, they are not intermediaries in the traditional sense. All they are really is developing software, creating the infrastructure that allows the provisions of some of these new products and services. That really is the focus of these new emerging technologies. It's not acting in the ways that we understand traditional broker-dealers or banks have traditionally participated and created these services. What we're hoping to achieve is to be able to democratize finance and allow these new products and services to be given to a new participants and consumers to be able to use these services. So it's really a fundamental reshaping of finance, and it's different from what we've seen from traditional participants. John, we've seen real-world asset tokenization happen in a very big way. What's your sense on how soon we could be looking at stronger moves for gold, crude, agriculture commodities trading natively on-chain at an institutional volume? I think you're seeing it happen in real time today. And with the participation of what you call traditional finance, whether they be banks, broker-dealers, and other, we're seeing institutions take up the provisioning of real-world assets or tokenization, if you will. So the opportunity set is not the potential any longer. It's really something that we're seeing grow at an exponential rate today. I think what you're seeing and the importance of having clarity move forward, in fact, or this piece of legislation through the US Congress right now, is the opportunity to turbocharge, if you will, this uptake of real world assets, providing the framework, providing the guardrails to give institutions, to give consumers the confidence in being able to participate in these markets as they grow and grow exponentially. But John, would you say that a lot of institutions and trading desks are not really utilizing or pushing capital pools within crypto? What would you say is holding all of that back? I completely agree with that sentiment. I believe, as I've mentioned previously, the regulatory framework is the key unlock in this area. I think once we are able to push for the Clarity Act in the United States, as well as different pieces of legislation and regulation in other jurisdictions around the world, I think that is a big blocker from getting all of this institutional money sitting on the sidelines, waiting to participate. So I think that is the key unlock here. And one thing I'll add to that is the educational level is still very low in a number of jurisdictions. I think as an industry, we still need to do a lot more
to increase the level of education. That is one of the reasons why we've launched an Injective Policy Institute, in fact, to try to increase the educational level to make sure consumers, policymakers, and other participants understands the true benefits of this new emerging technologies, as well as the potential mitigation that is available to make sure that fraud, bad actors, and other nefarious activities are removed from this system. पॉइंट टेकन। जॉन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। तो जॉन मेडल हमें बता रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट का पास होना यूएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी वजह से फ्रॉड और ट्रांसपेरेंसी फ्रॉड कम हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी बाजारों में आती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ ऑन चेन अब हम यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस हैं उनको भी आता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी हद तक ट्रेजरीज, इक्विटीज़, कमोडिटीज़ सभी कुछ अब ब्लॉक चेन पर यहाँ पर ट्रेड करने लगा है, जो कि 24 घंटे होता है। तो वो ऑफकोर्स एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर आता हुआ। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। कच्चे तेल में तेज गिरावट और रुपए की मजबूती से बाजार में बड़ा जोश। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़ के 24,150 के ऊपर। वहीं निफ्टी बैंक में भी 300 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप में भी रौनक। इंडिया विक्स 5% फिसलकर 13 के नीचे। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। कच्चे तेल में गिरावट से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही पिडिलाइट 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से एसबीआई करीब 2% मजबूत। उधर टाटा सन्स की लिस्टिंग की संभावना से टाटा केमिकल 6% चढ़ा, लेकिन चांदी में गिरावट से हेनजिंक, नैल्को 3% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स। ऑटो शेयर्स में आज तूफानी रफ्तार। 2.25% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। 2 से 3% तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल अशोक लेलैंड, मारुति और फोर्स मोटर्स। साथ ही रियलिटी, सरकारी बैंक और एनबीएफसीज में भी रौनक, लेकिन मेटल और कैपिटल मार्केट में हल्की नरमी। चार्टजीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। चार्टजीपीटी सेक्टर निफ्टी फाइनेंशियल 0.5% से ज्यादा ऊपर। साथ ही मजबूत चार्ट के दम पर श्रीराम फाइनेंस 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही बजाज फाइनेंस, ओबरॉय रियल्टी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट, आईसीआईसीआई बैंक भी 1% चला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। देखिए, हफ्ते का फॉर्चुनेटली आखिरी कारोबारी दिन। मूड माहौल की बात करी जाए तो शानदार मोमेंटम आज हमें बाजार में इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस टाइम पे करीबन डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ही आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करी जाए तो मोमेंटम यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। ऑटो में अच्छा खासा मोमेंटम है, करीबन 2.5% की तेजी के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी, आईटी, हर जगह इस टाइम पे जो बुल्स है वो हमें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लिप साइड की बात करी जाए तो ग्लोबल मार्केट में हमने कल कमोडिटी में सेल ऑफ देखा था, जिसके चलते आज हमारे मेटल पैक में भी एक जो मंदी है वो आती हुई दिखाई दे रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ग्रीनरी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। क्रूड भी यहाँ पे नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो टेंशन थी वो भी अब कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, क्या आज वो दिन है? क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। एक्सपायरी, साथ में आखिरी कारोबारी दिन आज हफ्ते का, और ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, ये पूरी की पूरी राय लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी सर, क्या करा जाए ऐसे बाजार के मूड माहौल में? मोमेंटम तो अच्छा दिखाई दे रहा है नो डाउट, लेकिन कहाँ पे मौके बन रहे हैं कमाई के? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे यहाँ पे बेट लगा सकते हैं? कंचन, श्रेया, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखिए कंचन, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो, जैसे कि हमेशा हम लोग बात कर रहे हैं पिछले, मुझे लगता है कम से कम 10 दिन से इस पे बात हो रही है कि ये जो 24,200 है निफ्टी में, स्पॉट में या फ्यूचर में, यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। आई थिंक जब तक 24,200 नहीं कटेगा, और लेकिन एक बात है,
नहीं कटेगा, रादर मैं ये कहूंगा कि इवेंचुअली ये कटेगा। रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट देखें तो इसमें हम लोग एक बुलिश एनगल्फिंग करके एक टेक्निकल चार्ट पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो परसों एक बुलिश एनगल्फिंग था, तो मुझे लगता है वो बुलिश एनगल्फिंग की वजह से यहाँ पे 24,200 का लेवल निकलेगा और इवेंचुअली निफ्टी जाएगा 24,400 से 24,500। तो बायस जो है मेरा वो पॉजिटिव है और मैं यही सलाह दूंगा लोगों को कि बायस पॉजिटिव रखें। मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा टूटेगा क्योंकि सामने एक्सपायरी है और शॉर्ट कवरिंग का की एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है यहाँ पे बुल्स को मिल रही है। ओके, तो मार्केट का टेक्सचर अभी अच्छा नज़र आ रहा है फिलहाल। ये राई निफ्टी बैंक निफ्टी पर लॉन्ग वीकेंड है और बुल्स के फेवर में मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होंगे तो उसको एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करते हैं। और नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछते हैं आपकी सवाल कैसे पूछें, तो 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न पूछें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके सिंध से आवाज़ के हैशटैग आस्क आवाज़, एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को पर्सनल डीएम करके भी आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दीपक जी जुड़ते हुए हमारे साथ गुजरात से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास जियो फाइनेंस के 670 शेयर हैं, वो 315 की प्राइस से लिए हुए हैं, तो क्या उसके अंदर बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? नजरिया क्या है आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? नजर है मैम, कम से कम मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ उसको। ठीक है। अच्छा, जियो फाइनेंशियल पे राय लूँ उससे पहले डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर आपका मन कर रहा हो तो एक बार अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। राजेश जी, जियो फाइनेंशियल 241 पे कर रहा है कारोबार, 315 इनकी खरीद है तो लॉस झेल रहे हैं। ये पेडिग्री अच्छी है सर, लेकिन इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, क्या किया जाए? श्रेया, अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे और हमने देखा कि हर रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं अटकता है और यहाँ से करेक्ट होता है। पर एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सपोर्ट लेता है, तो हाँ ये सपोर्ट भी लेता है। 220 से 230 के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 220 230 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, इसलिए मैं यही कहूंगा फिलहाल आप होल्ड रखे। पोजिशनल स्टॉप लॉस 210 का रखे। एक लेवल देता हूँ वो रहेगा 250 का। अगर 250 का लेवल ये काटता है, 250 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है, तो पूरे पूरे चांसेस है 280 तक जाएगा। देखिए हमने देखा जियो फाइनेंस हमेशा ना लेवल टू लेवल चलता है। तो जैसे मैंने कहा पहला 250 वॉच करें, उसके बाद 280 से लेके 300 का एक रेंज है, ये रेंज को ऑब्जर्व करें। अगर ये रेंज निकलता है तो फिर 340 प्लस इसका अगर आप रखें, क्योंकि चार्ट अच्छा है, चार्ट इतना बुरा नहीं है, एक्यूमुलेशन वाला है, इसलिए फिलहाल होल्ड है। चार्ट बुरा नहीं है, 210 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लेवल आपको वॉच करना है 250 का, वो क्रॉस होता है तो 280 से 300, अगर वो क्रॉस होता है तो 340 तक आपको जियो फाइनेंस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दे दिया गया था। चलिए अगले दर्शक यूपी से हमारे साथ विकास जी जुड़े हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पास 100 शेयर हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के। ओके 401, ये 491 की खरीद है और लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। ओके, एक्साइड इंडस्ट्री 100 शेयर्स 401 की खरीद, काफी एक तो हायर लेवल पे आपने खरीदारी कर ली है। मार्च के टाइम पे देखे तो एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे बना था 290 के आसपास। उसके बाद देखिए क्या शानदार रैली यहाँ पे हमें आती हुई दिखाई दी है। 400 का स्तर ये जो काउंटर है वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगेन जो बाइंग है वो काफ़ी हायर लेवल पे है। तो सातपते सर यहाँ पे क्या इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि सेम लेवल पे इस टाइम ऑलमोस्ट कारोबार कर रहा है, ऊपर जाने के और चांसेस है या यहाँ से हमें थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा मामला? देखिए ओवरऑल अगर आप एक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। 430 का लेवल था जहां से इसने करेक्ट होना शुरू किया करीबन 280 तक। 280 के आसपास बॉटम लगा और उसके बाद ये रैली फिर से ये जो 430 का रेजिस्टेंस है, आप समझ रहे हो, यानी करेक्शन हुआ और एग्जैक्टली सो दिस इज अ वी शेप रैली, वी शेप फॉल वाला वो मामला है। तो अभी ये चल रहा है कहीं ना करीबन 408 के आसपास, तो 430 का यहाँ पे बैरियर है। मुझे नहीं लगता कि ये इमीडिएट 430 का लेवल तोड़ेगा।
तो मेरी सलाह यही होगी कि फिलहाल आप होल्ड रखें, 385 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 430 का लेवल हिट करेगा, जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि इतनी अच्छी रैली के बाद जनरली जब वी शेप रैली आती है तो 430 का जो रेजिस्टेंस है वी शेप रैली का, वो एक बार के लिए लेगा और फिर से ये कूल ऑफ होगा। तो वन शुड बी लिटिल कॉशियस। आपने बिल्कुल सही कहा, एंट्री थोड़ी लेट हुई है। एक साइड पर ये व्यू आता हुआ अच्छी स्ट्रेंथ है आज तो पूरे बैटरी पैक में, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, टायर स्टॉक्स में तो अच्छा करता है ये भी, तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। 430 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन ध्यान रखिए 385 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं, विष्णु दीक्षित जी जुड़ते हुए कानपुर से। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। प्रश्न आपका? हाँ, हमारे पास ये इलेक्ट्रो कास्ट स्टील है, एक तो 2 रुपए की खरीद पे 800 शेयर है इस पे, और दूसरा है MSTC 750 रुपए की खरीद पे 200 शेयर। तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? है जी, सवाल क्या आपका सर? लंबी अवधि के नजरिए से लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, देखना है इसको कितना आगे जा सकता है, तो कब तक जाएगा ये। तो 2 प्रश्न पूछे आपने, एक तो MSTC और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। ये 280 के लेवल पे कर रहा है कारोबार, 102 आपने खरीद बताई। शुरुआत कर लेते हैं MSTC से, और 730 आपकी खरीद है और ये 664 पे कर रहा है कारोबार। राजेश जी, 1 महीने का चार्ट देख रही थी मैं, 1 महीने में रखेगा MSTC का चार्ट, 1 महीने में 54% से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं, 56% इनफैक्ट, तो 1 महीने में तो काफ़ी भागा है। 52 वीक लो से काफ़ी रिकवर हो गया है, 362 इसका 52 वीक लो था, अब 52 वीक के हाई की तरफ बढ़ता हुआ 724 की तरफ बढ़ता हुआ। क्या किया जाए? इनकी जो खरीद है वो थोड़ी हायर साइड की है, 750 के लेवल्स देख रहे हैं क्या, 750 वाले? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि काउंटर में एक अच्छी रैली हो चुकी है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो करीबन 430 के आसपास का ब्रेकआउट था, और 430 से आप देखिए करीबन 700 तक का मूव मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट नोट करना चाहूंगा कि काउंटर ओवरबॉट है। अभी रही बात एंट्री की, तो एंट्री डेफिनेटली लेट हुई है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 620 का। और अगर यहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली मिलती है प्रोबेबली, क्योंकि जनरली काउंटर जब स्ट्रेंथ में होता है तो वो एक अटेम्प्ट होता है कि फिर से एक बार के लिए रिटेस्ट करे अपना रिसेंट हाई, जो कि करीबन 700 के आसपास है। तो इस रैली में अगर आपको 700 के आसपास एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ले ले। अगर करेक्शन में कहीं आता है आगे चल के तो फिर री एंटर करें। मेरे हिसाब से जो एक लेग होता है, एक हम जो इलीट की बात करते हैं, इलीट वेव की बात करते हैं, तो इलीट वेव के हिसाब से एक जो बड़ा लेग होता है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो गलत लेवल पे एंट्री हुई है, बस इतना ही मेरा कहना है। अपॉर्चुनिटी मिले तो एग्जिट कर लेना, 620 के आसपास स्टॉप लॉस। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाइए, काफी हाई साइड की आपकी खरीद हो गई है इसमें MSTC में, और 620 का स्टॉप लॉस लगाएं, और कहीं भी आपको उछाल मिले तो वहां से निकलने की सलाह है फिलहाल। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अच्छा, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स पर भी इनका सवाल है, 80 पे कर रहा है कारोबार राजेश जी, 102 इन्होंने अपनी खरीद बताई तो लॉस झेल रहे हैं, और काउंटर देख रही थी मैं काफी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर क्या रणनीति? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर है। हाँ, अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाता है तो फिर वो ये भाग जाता है। तो फिलहाल तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है वो करीबन 78 टू 80 के बीच में है। तो जब तक 78-80 के का लेवल मेंटेन होता है तब तक मुझे लगता है यू कैन होल्ड, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है 75 का। ब्रेकआउट कहाँ पे है? देखिए 85 का ब्रेकआउट है। 85 पे क्या है? इसका 200 डीएम आता है। तो अगर ये 200 डीएम यानी 85 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो चांसेस है कि 100 को एक बार के लिए रिटेस्ट करे। अगर 100 के ऊपर चला जाता है तब जाके हम कहेंगे कि यहाँ पे रैली शुरू हुई है, लेकिन तब तक 100 इसका बैरियर रहेगा। ओके, तो ये थी राय इलेक्ट्रो कास्ट के ऊपर, इसके साथ ही साथ MSTC के ऊपर भी अपनी जो राय है वो दे दी गई है। अगले दर्शक दिल्ली से अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्ते श्रेया जी, नमस्ते राजेश जी बताइए क्या सवाल? मेरे 2 स्टॉक्स हैं जी। एक मेरे पास एवेंटल है, आई हैव 1000 at 151, एंड सेकंड इज भारतीय इंटरनेशनल विच आर 100 at 720। सो आई कैन होल्ड देम फॉर लॉन्ग, लंबी अवधि के लिए रख सकता हूं। तो आप बताएं सर क्या इनपुट्स हैं?
ओके, शुरुआत एवेंटल के साथ करते हैं। 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 151 की बाइंग है एंड 174 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो है करीबन 2.5 से 3% की देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे ही टेक पैक में आज मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। लेकिन आगे की जर्नी किस तरीके से मैप करनी चाहिए राजेश जी? यहाँ पे एक फ्लैट मूवमेंट हमें देखने को मिला है पास्ट 1 ईयर में, लेकिन आगे किस तरीके से? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि एवेंटल में जो रेजिस्टेंस है ना, वो करीबन 185 टू 190 के आसपास है। काउंटर अच्छा है, नो डाउट, काउंटर में स्ट्रेंथ दिखती है, नो डाउट। करेक्शन में आप देखो इतना घटता नहीं है। तो ये 2-3 चीजें थे कि आप कह सकते हैं कि काउंटर होल्ड करने लायक है। लेकिन फिलहाल मैं लेवल की बात करूंगा। 180, 185, 185 ही पकड़ के चलिए। 185 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि 185 जब होता है, ऊपर चलता है, तो इट्स पेनिट्रेशन, आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है। तो 180 के ऊपर का ब्रेकआउट मिले तब जाके इसके नए टारगेट्स अनफोल्ड हो गए 210 के। तो फॉर मी काउंटर ठीक है, स्टॉप लॉस होगा 160 का। ओके, 160 का स्टॉप लॉस लगाना है, 180 पार करता है तो 200 तक के आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं एवेंटल में। दूसरा सवाल इनका भारतीय इंटरनेशनल के ऊपर है। 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 720 की यहाँ पे बाइंग है। हमने देखा था कि 950 से ये यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन क्या वापस से एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? 1 सेकंड, भारती राइट? हाँ जी, BIL इसका NSE कोड है, भारतीय इंटरनेशनल। गॉट इट। देखिए, भारतीय इंटरनेशनल कहाँ गया? यस, भारतीय, गॉट इट। देखिए, भारतीय इंटरनेशनल में कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आज एक अच्छी रैली मिली, लेकिन वो ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई। 870 के आसपास का इसने टॉप बनाया और अभी ये चल रहा है 824 के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर से 25 रुपए ये करेक्ट हुआ। लेकिन चार्ट में क्या खराबी है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप इसमें बने रहे तो रह सकते हैं। 750 का स्टॉप लॉस होगा। अभी काउंटर का मूव इतना बड़ा आ रहा है तो स्टॉप लॉसेस भी बढ़ेगी, रखने पड़ेंगे। 750 का स्टॉप लॉस रखे। 900 का एक पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन लगता है कि 950 से लेकर 980 तक का स्विंग दे देगा। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। भारतीय इंटरनेशनल यहाँ पर होल्ड करने के राय फिलहाल आती हुई। चलिए, ये व्यू हो गया। 980 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज थोड़ा समय का अभाव था, बहुत सारे दर्शकों का सवाल भी आया है, तो फिर से मंडे को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुलाकात होगी आपसे फिर क्लोजिंग शो में राजेश जी, लेकिन अब वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो कॉर्नर लौटते हैं।